कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजू महारानी की, छत्रसाल महाराज की। लय के पला જાય છે હા એની ફ્રેન્ડ્સ બધા આવે છે ને તે કાંઈ જાય વાંધો છે. નહીં લે એ ખાવાનું બધાને પ્રણામ. ઓકે પહેલા પ્રાર્થના કરીએ પ્રાર્થના પછી થોડીક સત્સંગ કરીશું પ્રાર્થનામાં બધાને સાથે પ્રાર્થના કરવાની આજે આંખો બંધ કરીને कृष्ण कन्हैया लाल की आनंद कांदा प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपे न पुरा पिजातम प्रवेश्य प्राप्त प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्ण सततं नमामि बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम कृष्ण कन्हैया लाल की जय હું ગાઉં અને બધા ઝીલજો राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा करिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा करिए जाहे बेधरा तेरा जाहे बेधरा रहिए जाहे बेधरा तेरा
सच्चिदानंद स्वामी की। गुजराती में बोलूं कि हिंदी में बोलूं? हिंदी में सबको समझ आएगा। गुजराती नहीं समझ में आती है? कुंजम कुंजम बस थोड़ा गुजराती के साथ अभी ज्यादा आ नहीं रहे बहुत सालों बाद कृष्ण है। कन्हैया लाल की जय। थोड़ा गुजराती में बोलूंगा फिर। આજે આમ તો ટ્યુઝડે અહીંયા જ હતો હું। રાજશ્રીબેનના હાથનો બહુ જ સુસ્વાદિષ્ટ સુમધુર ભોજન પ્રસાદ કરીને પછી હું મારી બીજી યાત્રામાં લાગી ગયો હતો। પણ છતાં ફરી એકવાર અક્ષરાતે ધામધની શ્રી રાજશ્યામાજીની અનંત કૃપાથી ફરી એકવાર ધર્મેશભાઈ અને રાજશ્રીબેનના ઘરે આજે એક સુંદર સત્સંગનું સમાયોજન થયું છે। અને અમે જ્યારે નાના હતા, હરિયાણા રહેતા હતા, ત્યારે એક મહાત્મા ભજન ગાતા હતા, બડ ભાગી કે હોવે સાધા કા સત્સંગ। બડ ભાગી, જેના મોટા ભાગ હોય ને એના ઘરે સંતોની પધરામણી, ભગવદ ભક્તોની પધરામણી અને સંતનું સમાગમ થતું હોય છે। તો એટલા માટે પેલા ગુજરાતમાં છે ને દંતાલી કરીને ગામ છે, એ દંતાલી ગામમાં એક સાધુ હજી છે, લગભગ 95 વર્ષની ઉંમર હશે, સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી મહારાજ ગુજરાતના સુપ્રખ્યાત સંત છે। એ આખા વિશ્વમાં ફર્યા છે। આટલી વાત ગુજરાતીમાં કહી અને પછી હિન્દીમાં ચાલુ કરીશ। એ સંત શું કહે? એ કહે છે, મારા આખા જીવનમાં ગુજરાતના ગામડે ગામડે, ભારતના ઘણી જગ્યાઓમાં અને બધા અમેરિકા ઇત્યાદિ બધા જ દેશોમાં, ધ્યાનથી સાંભળજો, બધી દેશોમાં ફરતા મને એક અનુભવ થયો। એમ પહેલા સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી મહારાજે કહ્યું। શું અનુભવ થયું? મોટા ભાગના માણસો સાધુઓને જોએ ને, થોડુંક અબડી વાત કરું છું, જરા ધ્યાનથી સાંભળજો। મોટા ભાગના માણસો એમ વિચાર કરે કે સાધુઓને જોએ ને તો એમ વિચાર કરે કે ઉઘરાણો આવી ગયો। એ સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી મહારાજના શબ્દો છે। સાધુને જોઈએ તો મોટા ભાગના લોકો શું સમજે? ઉઘરાણો એટલે કાંઈ ને કાંઈ ઉઘરાણું કરવા આયા હશે, પણ એવું નથી હોતું। શાસ્ત્રોમાં બધી જગ્યાએ એમ લખ્યું છે કે બહુ જ મોટું ભાગ્ય, સદભાગ્ય હોય ત્યારે, એટલે બહુ જ મોટા એક મહાપુરુષ થયા તુલસીદાસજી, એમને શું કહ્યું? સંત સમાગમ હરિ કથા તુલસી દુર્લભ દોય। સંત સમાગમ અને પરમાત્માની કથા। તો આજે જ્યારે ધર્મેશભાઈ રાજશ્રીબેનના ઘરે આ એક સુંદર કાર્યક્રમ, સત્સંગનો કાર્યક્રમનું આયોજન સમસ્ત સુંદર સાથ વતી કરવામાં આવ્યું છે, અને આવો આપણે આજના સત્સંગને ખૂબ આનંદ માણીએ। કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય। મજામાં છો? એક ભજનથી હું આજનો સત્સંગ પ્રારંભ કર્યો। ક્યાં ગયું ભજનની ચોપડી? બહુ સરસ गुजराती भजन છે। एक गुजराती भजन है, उसके द्वारा मैं आज का सत्संग प्रारंभ करता हूँ। आप सब लोग भाव और प्रेम से मेरे साथ दोहराएंगे। झील जो पेज नंबर 75। ये जो एक भजन है ना सुशील जी, अब मैं हिंदी से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रश्मि, तुम दो के कारण पूरी भाषा मैंने बदल दी है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम नेपाली बोलते આજે ये जो भजन છે ને
ચાલુ કરી દીધું. બોલી કે નેપાળી માં યોજન ભજન છે बहुत मीठो भजन रामरो भजन हाँ, इतना हाँ, मीठा भजन। लगता है, इससे ज्यादा नहीं આ ભજન છે એક જીવનનો સાર ગર્ભિત ભજન છે. ધીમે આવો હું ગાઉં બધા ઝીલજો બધા દોહરાના. જિંદગીમાં કેટલું કમાણા રે જરા સરવાળો માણજો. જિંદગીમાં કેટલું ઓહો જિંદગીમાં કેટલું કમાણા રે જરા સરવાળો માણજો. જિંદગીમાં કેટલું સમજો સજન અને તાણા રે જરા સરવાળો માણજો. સમજો સજન અને
भजन है गुजराती का, लेकिन इस भजन के अंदर पूरा जीवन का सार बताया गया है। तो जो गुजराती हैं उनको तो बहुत सरल शब्दों में लिखा हुआ है, और सरल शब्दों का पहले ये भजन की थोड़ी सी रूपक आपको बता दूं। ये भजन में भजनी जो कवि है वो कह रहा है कि आपने जीवन में ऐसा विचार करते हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। गुजराती में एक बहुत सुंदर शब्द છે ખબર છે, ગામડામાં આપણે ગામડામાં બોલીએ છે ને તે શબ્દ બહુ ડંફાસ મારે છે, બોલે શબ્દ બોલે ને બહુ ડંફાસ મારે છે। એટલે અમુક લોકો છે ને બહુ વાતો, મેં આમ કર્યું ને મેં તેમ કર્યું ને ફલાણું કર્યું ને मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो सामाजिक रूप में दो काम होते हैं, जो करता है वो बहुत कम कहता है, और जो बहुत कहता है वो करता कम है। तो इसलिए गांव में लोग उसकी बात को अनदेखी कर देते हैं, आ तो बोले छे, है ना। तो इसीलिए एक कवि ये कह रहा है कि अपने आप को निहारो, अपने आप को देखो। जो बहुत अच्छा कैलकुलेशन करना जानता हो ना, वो कभी घाटे में नहीं रहता है। आपको एक बात याद होगी, दुनिया में जब मनी क्राइसिस आता है, जब इकोनॉमी का क्राइसिस आता है बहुत, तो आप देखो प्राय लोग, खास करके ये जो वेस्टर्न के लोग हैं, उन्हें इतना जल्दी असर हो जाता है। कोई आत्महत्या करता है, कोई भाग जाते हैं। आप कभी अमेरिका घूमने जाओ ना, तो कैलिफोर्निया में जरूर जाओ घूमने, लेकिन जहाँ घूम के देखना है वो मैं एक आपको दृष्टि देता हूँ। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में या सैन फ्रांसिस्को में जाके देखोगे, वहाँ पर होमलेस लोग बहुत हैं। होमलेस समझो છો ना, घर बगरना मानस, होमलेस। सबके हाथ में एक लिखा हुआ है होमलेस, होमलेस, लेकिन फोटो खींचने नहीं देते हैं वो लोग। नहीं, अगर फोटो खींचते हुए किसी ट्रैफिक या किसी पुलिस को देखा जाए तो आपको जेल में बंद करेंगे। कारण अमेरिका की ये पुअरिटी, ये इमेज खराब होगी, इसलिए होमलेस लोग। उन होमलेस लोगों में कई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कल तक बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बिल्कुल एक ही दफे ठप से नीचे आ जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन आज तक प्राय जो एशियन मुल्क लोग हैं, एशिया के लोग हैं, इनमें विशेष करके अपने भारतीय लोग, और भारतीयों में भी गुजराती, कैसे भी क्राइसिस क्यों नहीं आए, लेकिन वो कभी होमलेस नहीं होता है। कारण क्या है, उसको दबा के रखना आता है। कृष्ण कन्हैया लाल की, हाँ, है ना। कल रमेश भाई बोलते थे अब हम लोग तो रिटायर्ड हो गए ना, बराबर ना। कृष्ण कन्हैया लाल की, એટલે कुछ खर्च वगैरह ये सब करना हो तो देख के करना, कि भाई नहीं, अपने जेब में जितना है उसके हिसाब से करना है ना। तो इसलिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કપરીમાં કપરી પરિસ્થિતિ આવે ને, खराब में खराब परिस्थिति आवे तो भी हमारे लोग जीवन को सरवाइव कर सकते हैं। मनी क्राइसिस जब आता है तो उसका मतलब क्या है, जीने का एक ढंग हमें आता है ना। जीने का एक कवि कहता है, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। क्षमा बुझ जाए और महफिल में रंग आ जाए, उस महफिल से क्या कहा, जब क्षमा ही बुझ गई तो जीवन गुजर जाने के बाद में जीवन जीने का ढंग आए, उसका क्या अर्थ है। तो इस भजन में
कवि ने पूरी तरह बताया है कि जीवन में आप कहाँ कहाँ प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से थापियां छे आम तेम छाणा रे, है ना, बहुत सब दृष्टि से। तो फिर क्या करना चाहिए जीवन में? तो जीवन के दो पहलू हैं, जीवन के दो भाग हैं। एक भाग है हमारा भौतिक जीवन, यानी मटेरियल लाइफ, जो आज का हमारा जीवन है ना, मटेरियल लाइफ। ये राजश्री बहन को देखो, हिम्मतनगर में सबसे अच्छे पैसे वालों की लड़की है ये, डॉक्टर अमीचंद, हाँ, जो पूरे अपने साबरकांठा में एक नाम डॉक्टर अमीचंद। अब उनकी ये दो लड़कियां, लेकिन एक जीवन के आगे विकास करने के लिए अपने देश, अपने परिवार को छोड़ करके दोनों यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, है ना। एक भौतिक जीवन कि भाई हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन बहुत अच्छा हो, सब लोगों की यही कहानी है ना। सब लोग, ये सुशील और ये रश्मि को देखो, ये सुशील जहाँ रहते हैं ना, वो नेपाल का बिल्कुल बीच का भाग है, जिसको हेटोड़ा बोलते हैं। आप लोगों को तो इसने अपनी बात नहीं कही होगी, लेकिन मैं आज कह दूं, ये हेटोड़ा उसको बोलते हैं। आपने जीआईडीसी कही है ना, उसको क्या बोलते हैं जीआईडीसी को? आपने हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया। नेपाल का सबसे बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया में आज के जीवन में वहां का करोड़पति आदमी है। इतनी संपदा है, ये 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी खाए तो भी पूरा ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ लंदन में आया हुआ है। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, भौतिक जीवन को मजबूत। क्योंकि मैं जानता हूँ, इसके पिताजी को जानता हूँ, माँ को जानता हूँ, भाइयों को, सबको जानता हूँ। फिर भी अब मैं भारत में सब कुछ है, फिर भी अमेरिका जाता हूँ ना, जबकि भारत में और नेपाल में सुनने वाले हजारों लोग होते हैं, और यहाँ पर सुनने वाले खोज खोज के करो तो भी 30, 40, 50। उसमें भी मैं देख रहा था, आप लोगों का वो देख रहा था। आज मैं भी नहीं आ सकता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट तो कोई होता ही नहीं, सब लेफ्ट ही लेते हैं। लेकिन फिर भी क्यों जाते हैं? उसके पीछे एक ही कारण है, सबके अपने अपने काम हैं, काम करने के लिए हम जाते हैं। रोटी तो वहाँ मिलती है, लेकिन भौतिक जीवन को सुधारने के लिए, भौतिक जीवन को संवारने के लिए, भौतिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए, आने वाले पीढ़ियों तक हमारे बच्चे खूब साक्षर बने, पढ़े लिखे लोग हों, खूब पढ़े, इसलिए सब लोग भौतिक जीवन को संवारने लगते हैं। इस विषय में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा, कारण मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो भौतिक जीवन, क्योंकि मैं भौतिक जीवन का ज्यादा जानकार नहीं हूँ। लेकिन इसके साथ में एक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। कौन सा जीवन? बोलो तो बताओ। आध्यात्मिक जीवन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब क्या है? मैंने इस विषय में इस बार के अलग अलग प्रवचनों में बात कही है, फिर भी एक छोटी सी बात इसको आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है ट्रू, एकदम सच में शांति प्राप्त करना, सच में आनंद प्राप्त करना। कैसे? जैसे प्राणनाथ जी ने एक शब्द में कहा, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है? तेरो करार। एक करार शब्द का अर्थ है शांति। क्या है अर्थ? करार माने शांति, पीस। जीवन का परम सुख मिले, जीवन का परम आनंद मिले, इसके लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसी को आध्यात्मिक जीवन का मूल भाव है आत्मा के संबंध में। तो कई बार क्या होता है, भौतिक जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं,
केवल आप लोगों के लिए नहीं, जो मेरे लिए तुम देखो कि हम आश्रम बनाए, मंदिर बनाए, बड़े बड़े गगनचुंबी मंदिर बनाए, बहुत कुछ करे, लेकिन ये सब भौतिक है, सब भौतिक है। आप लोग घर बनाते हो, अपने लिए बनाते हो, हम आश्रम बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं, लेकिन है भौतिक। फर्क इतना है कि आप लोग अपने लिए करते हो, हम सबके लिए करते हैं। इसलिए हमें अपने लिए, जो अपने कोई नाराज भी हो जाए तो हमें परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हम सबके लिए करते हैं। एक नाराज होता है, 4 खुश हो जाते हैं, है ना। तो नाराज होने वाले को देखना नहीं है, खुश होने वाले को देख के काम आगे बढ़ाना है। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए, ये जो बात है ना, ये जो अभी हमने भजन गाया, ये कह रहा है कवि कि जिंदगी में, जीवन में हमने कितनी कमाई की। कौन सी कमाई? पैसों की कमाई तो हमेशा करते ही करते हैं, हिसाब तो करते ही करते हैं, है ना। कि पूरा साल काम करने के बाद में हमने अपने तिजोरी में सारा खर्च करने के बाद में कितना भरा। ये कमाई नहीं, एक और कमाई है, एक और संपदा है, एक और बहुत बड़ी संपत्ति है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में कहा, आ अवसर केम भूलिए, कारण एक कोलियो अन्न। प्राणनाथ जी कहते हैं यह जो अवसर है, यह जो अवसर, अवसर को गुजराती में अवसर ज कहिए ना, आज अवसर छे, यह जो अद्भुत जे अवसर है, अवसर को इंग्लिश में क्या कहेंगे धर्मेश में? ओकेजन। एक अपूर्व अवसर, जैसे आज जो सत्संग हो रहा है ना, ये सब क्या है? अवसर है। ये अवसर बाद में फिर मिलेगा। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कई शब्दों में कहा, यहाँ विलंब की धानी नहीं बार, यहाँ विलंब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अवसर हाथ से चला जाएगा। तो प्राणनाथ जी कहते, आ अवसर केम भूलिए, यह अवसर क्यों भूलते हो? कारण एक कोलियो अन्न, एक मुट्ठी अन्न के लिए। अन्न शब्द केवल एक ग्रास भोजन के लिए नहीं। जीवन भर जो अभी हम भजन गा रहे थे ना, जिंदगी मां केतलू कमाना, सब लोग एक शब्द बोलते हैं, जब इस संसार से जाएंगे तो कुछ भी लेके जाएंगे, बैंक के अकाउंट यहीं के यहीं रह जाएंगे। कितना भी बढ़िया घर बनाओ, यहीं का कोई भी जमीन जायदाद, गाड़ी, बंगला, कुछ भी हो, जब जिस दिन हम जाएंगे सब कुछ यहीं रह जाएगा। 2 सपने हैं ना, 2 प्रकार के सपने। एक सपना कैसा है, जब आंखें बंद करते हो तो तब शुरू होता है। एक सपना जब आंखें बंद करते हैं रात को, सपने में शुरू हो जाता है सपना, ये देखा, ते देखा, फलाना देखा, है ना। और एक सपना जब आंख खुली तो रात का सपना खत्म, पूरा हो गया ना। जब आंख खुली, रात में जो सपना देखा था वो सब खत्म हो गया। और ये जो है, ये भी तो सपना है, ये सपना नहीं है। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब, प्रपंच 5 तत्व खेल सुरत के संग, ये सब सपना ही सपना है। तो ये सपना कब तक है? जब तक आंखें खुली हैं तब तक सपना दिखता ही रहता है ना। लेकिन ये सपना कब पूरा होगा? जब हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाए। सीधी सी बात है ना। आंखें खुली होंगी तो रात के सपने खत्म हो गए, और हमेशा के लिए आंखें बंद हो गई तो ये प्रपंच जो सपना है ये खत्म हो गया। बस इसके बीच का ये संसार है और कुछ भी नहीं है। सब लोग कहते हैं आखिर क्या लेके जाना है, लेकिन फिर भी उसी के पीछे पड़े हैं हम लोग। उसी को तो प्राणनाथ जी ने एक बहुत सुंदर नाम दिया, मोह जल। क्या कहा? हवे पहला मोह जलनी। ये कौन सा जल है?
कौन सा पानी है? ये पानी है ही नहीं। पानी जैसा दिखता है, लेकिन पानी कैसे? तो किरंतन ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में एक बात कही, मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे, अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे, बिंद में सिंध समा यारे साधो, बिंद में सिंध। रामनाथ जी कहते हैं जैसे रोड में या रेत में दिखने वाला जो पानी दिखाई देता है उससे प्यास बुझती है क्या? रे मन त्रिखा ना बुझे, तेरी झाजू ये प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए। रामनाथ जी कहते हैं जैसे अपने झाजवानो नीर कहिए ना, मृग तृष्णा, मृग माने पशु, उनको दूर से दिखाई देता है, रेत में जो रेत चमकता है ना उसमें पानी दिखाई देता है, लेकिन जाके मुंह मारता है तो मुंह में जलन होती है रेत की, लेकिन पानी तो जैसे पानी दिखाई जरूर देता है लेकिन पानी होता नहीं है। तो ये संसार को प्राणनाथ जी ने मोहजल कहा। मोहजल का मतलब है जल जैसा दिखता है लेकिन जल नहीं है। तो इस संसार में शायद वहां सुख है, वहां सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ आनंद है, इसमें है, इसमें है ना। तो वो दिखाई जरूर देता है लेकिन होता नहीं है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं परम सुख को पकड़ने का तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा आ अवसर केम भूलिया, यह अवसर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म के द्वारा ही उस अवसर को अचीव कर सकते हैं। गाय, भैंस, बैल, घोड़े, गधे, देवता, पितर, किन्नर वो भी नहीं कर सकते हैं। सब भोग भूमि में है, केवल मनुष्य उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा मानखे देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए, ये तो अदखिन को अवसर, सो गमावत माझ निदर। ये अवसर मनुष्य जीवन पाने का ये अवसर, लेकिन इस अवसर से क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। परसों नरसों एक यहाँ बाउल है, यहाँ भी होगा शायद या उधर होगा, वैसे घुमा करके बजाते हैं ना, है ना, सिंगिंग बाउल, है ना। उसका एक बहुत बड़ा गुरु वहाँ कोलोराडो में रहता है। तो सबको कई बार सारे गोरों को बुला के मुझे बुलाता है, मेरे भी गुरुजी आ रहे हैं, तो गोरों के सामने फिर वो सिंगिंग। अब देखो वो बाउल है ना, उसको आप हिलाओगे तो बजेगा जरूर, लेकिन उसमें जो रिदम आना चाहिए ना वो नहीं आएगा। उसके लिए सीखना पड़ता है, टेक्निक है उसमें। लेकिन उस टेक्निक से आप सीखोगे तो उससे जो आवाज आती है, उस आवाज से आप कितने भी झंझट में हो आप सो जाओगे, अच्छी सी नींद आ जाएगी। मैंने तो प्रयोग किया इसलिए कह रहा हूं। तो इस हर चीज में टेक्निक होना चाहिए। अब यहाँ गाड़ी चलाते हैं तो राउंड अबाउट आता है, किधर घुमाना है, हम तो देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि मैं अमेरिका ज्यादा रहूं तो अमेरिका में तो बड़े चौड़े चौड़े रोड है, हमारा गए इधर गया उधर गया, और वैसे भी सीधे राउंड अबाउट तो वहाँ लगभग होता ही नहीं है सीधी। अब लेकिन वो जो जानता है फट से खड़ा रहता है, फिर उधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ ले जाना है, कितनी स्पीड में घुमाना है, टेक्निक चाहिए ना। तो इस मनुष्य जीवन से परम आनंद को प्राप्त करने के लिए भी टेक्निक चाहिए। तो वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक 4 टेक्निक है उसके प्रणामी धर्म में। कितने? 4, 4 स्टेज, 4 टेक्निक्स है। एक है सेवा पूजा, जो अब थोड़ी देर में हम लोग करेंगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन होता क्या है कि पहली बात हम प्रॉपर सीखते नहीं है कि कैसे हमको सेवा पूजा करनी चाहिए। प्रणामी में एक सबसे गजब की बात क्या है जानते हो? अभी तो जानना शुरू नहीं हो उससे पहले अपने को गुरु समझने लगते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की बात समझ में आ रही है? अभी तो जानना शुरू नहीं हो उससे पहले अपने को गुरु समझने लगते हैं। इन गुरुओं से भी हम ही ज्यादा जानते हैं,
इसलिए कभी प्रॉपर सीख सकते क्योंकि सीखोगे तब जब अपने को अनजान समझोगे, है ना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा सीखना हो तो सीखने की तरह शिष्य बन के रहो, लेकिन अगर सेवा पूजा को अच्छे ढंग से सीखोगे तो सेवा पूजा में टेक्निकल सेवा पूजा करते करते हम करते हैं यहाँ, लेकिन सुरता परम धाम में हो सकते। जैसे अभी शाम की सेवा पूजा में हम बोलेंगे, है ना, श्री जमुना जी के घाट में अमृत बना पाठ में, जमुना जी के घाट में अमृत बना पाठ में, करत क्रीड़ा जल जोए न संग सोए। अब देखिए सेवा पूजा हम कर रहे हैं यहाँ, लेकिन वर्णन कहाँ का हो रहा है? श्री परम धाम में श्री जमुना जी के सुंदर घाट में। वो घाट भी कौन सा? सामने जो 7 घाट हैं उनमें से सीधा रंग महल के सीधा वाला जो घाट है, जिस घाट का नाम है अमृत घाट, यानी आंबाना वन छे यानी सामे जे घाट छे तेનું नाम अमृत घाट। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन, अमृत बन એટલે सुंदर सुंदर केसर केरियो, हाफूस, लंगड़ा, कैंट, एक केरी की जाति होती है। सुंदर सुंदर जो वहां पर आम लगे हैं, बीच में रास्ता है, रास्ते के दोनों ओर आम लगे हुए हैं, और उस आम वन के सामने का जो घाट है उस घाट को अमृत घाट कहते हैं। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में करत क्रीड़ा ज। अब देखो यहाँ सूरत एक ही राखिए मूल मिला। और जब हम सेवा पूजा करते हैं, सेवा पूजा करते हुए हम ये विचार करें कि मेरे सिंहासन में साक्षात श्री परम धाम के अक्षराते धाम धनी श्री राज महाराज विराजमान हैं। यह सोच, यह पूरी तरह से, क्यों? क्योंकि जब मैं वृंदावन रहता था, कुछ ऐसे वैष्णव को मैंने देखा जो लाला की सेवा करते, सेवा करते करते रोने लग जाते। डोंगरे महाराज को हमने देखा, बहुत सारे वैष्णव को देखा कि लाला की सेवा करते करते आंखें विगलित हो जाती है, रोना आ जाता है। एक भक्त ने मुझे कहा, मुझे कहता स्वामी जी ये लाला जी को जब इच्छा नहीं होती है ना तो मुगट नहीं पहनते हैं, फिर पाग पहनाना पड़ता है। तो मैंने कहा हम तो मूर्ति समझते हैं, एक छोटी सी मूर्ति पड़ी हुई है, लेकिन जो वैष्णव सेवा करते हैं वो ऐसे सेवा करते हैं साक्षात लाल जी विराजमान है, ऐसे सेवा करते हैं। इसलिए वो लोग कभी वैष्णव का भजन सुनना, आँख मारे उघड़ी त्या नंद लाला देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए नीले। ऐसे प्रभु साक्षात विराजमान है करके सेवा करते हैं। उससे क्या होता है? अनुभव होता है, उससे कृष्ण कन्हैया लाल की अनुभव होता है। तो इसी भांति पहला स्टेप है सेवा पूजा का। जितना समय है, समय कम है तो जल्दीबाजी मत करो, समय कम है तो थोड़ा करो, लेकिन जो करो पूरी शिद्दत के साथ करो, पूरी प्रेम के साथ करो, पूरे भाव के साथ करो। ऐसा होना चाहिए जैसे मेरे प्राण प्रत्यम प्राण वल्लभ धाम धनी मेरे साथ ही विराजमान है, ऐसा अनुभव होना चाहिए, है ना। तो सेवा पूजा ये बहुत गजब की चीज है। आप सवेरे की सेवा पूजा देखो, इसीलिए गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज कहते थे मंदिरों में अष्टयाम यानी अष्टप्रहर की सेवा होनी चाहिए। लेकिन जिन गृहस्थियों के पास समय नहीं है, वो अगर घर में
अष्टयाम की सेवा नहीं कर सकते हैं तो 2 टाइम की सेवा पूजा करें, लेकिन जितनी हो सके उतनी सेवा करें, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग 5 दिन तक बहुत व्यस्त होते हैं। तो 5 दिन तक सेवा पूजा को संक्षिप्त बनाओ, क्या क्या कर सकते हैं उतना ही, लेकिन जो करो वो पूरी भावनाओं के साथ करो। और करते करते दिल में हमेशा ये भाव रखें कि मेरे प्रियतम मेरे साथ ही हैं, मेरे पास ही हैं, मैं उनकी ही सेवा कर रहा हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए सेवा पूजा, है ना। और दूसरा है पाठ, पाठ जरूर करनी चाहिए। तो छोटी सी पुस्तिका है नित्य पाठ। नित्य पाठ में प्रकट वाणी है, मेहर सागर है, धाम वर्णन है, मूल मिलावा है ना। ये सब प्रकरणों का हर रोज पूरा पाठ ना कर सको पर 4 चौपाई 10 चौपाई हर रोज करो, फिर दूसरे दिन उससे आगे करो, तीसरे दिन उससे आगे करो, फिर पूरा हो जाए फिर आप वापस करो, है ना। तो परंतु हर रोज करो, नियमित करो। उससे क्या होता है, हमें राज्य स्मरण कराते हैं, तुम बैठे थे हो संसार में लेकिन हो तुम परम धाम में। तुम हो परम धाम में, याद रखो सूरत एक ही राखिए, तो ये ध्यान रखो। तो पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। और पाठ क्या है कि हम परमात्मा को बुला रहे हैं, परमात्मा मेरे पास है, ऐसा अनुभव करने के लिए पाठ है। और उसके बाद जाप करना चाहिए, जाप निज नाम का जाप नियमित करना चाहिए। अब हमारा जो निज नाम है 6 चौपाई का है, इसलिए जहां तक हो सके 6 चौपाई सवेरे करो, अगर संभव हो सके 5 बार करो, नहीं हो सके तो 1 बार 6 चौपाई का जप करो। उसके बाद में जो 16 अक्षर है, जो 16 अक्षर जिसको अक्षरातीत राज्य महाराज धामधनी ने श्रीदेव चंद्र जी महाराज के कान में जो दिया है, 16 अक्षर का आप जप करें। कितना जप करें? असंख्य जप करना चाहिए। वैसे तो 108 जप करना ही चाहिए, लेकिन अभ्यास ऐसे बनाओ कि बैठ करके जप नहीं हो पाता है, गाड़ी में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभ्यास बनाइए कि अगर जीभ खाली है, मन खाली है तो चालू रहना चाहिए, है ना। इसलिए तो हम शाम को नहीं गाते हैं, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत को, ना जानो इन श्वास को, फिर आवन हो। इसलिए श्वास मतलब जब याद आए श्वासोश्वास जप करते रहना। जाप का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल वृंदावन धाम आदि में बड़े बड़े जो पहुंचे हुए संत लोगों को जाप का महत्व सिखाते हैं, खूब जाप करो। एक महात्मा ने तो इतना तक कह दिया कि 16 षोडशाक्षरी महामंत्र को कितने अक्षर है? 16 अक्षर है ना। 16 अक्षर को 16 लाख बार जप करोगे ना, तो फिर जप के साथ प्रेम बनेगा। कितना जप करने पर? 16 लाख जप करने पर तब मंत्र के साथ प्रेम बनेगा। प्रेम बनने का मतलब क्या है? अब आपको जबरदस्ती जप करने की जरूरत नहीं है, जप अपने आप होने लगेगा। इसको बोलते हैं अजपा जाप, बिना जप किए भी चालू रहता है। आप गौर, मुझे आपको एक बात कहूँ तो आपको आश्चर्य लगेगा। परम पूज्य ब्रह्मलीन धामवासी श्री 5 नौतनपुरी धाम के जगत गुरु आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज, उस समय तो ये जो है डायलिसिस करने वाली साधनें बहुत होती नहीं थी, तो बम्बई के भुलेश्वर मंदिर में बैठ करके वो ये डायलिसिस का कराते थे। उम्र लगभग 88-89 वर्ष की उम्र होगी। तो उस समय कभी कभी सेवा करने के लिए मुझे भी जाने का, मैं तब वृंदावन में पढ़ता था, तो मैं भी एक बार पहुंच गया।
और मैं बच्चे अवस्था से मेरे में क्यूरियोसिटी बहुत। तो जब रात को धर्मदास जी महाराज सो जाते थे घोर निद्रा में, मैं उनकी चरण सेवा कर रहा था, तो पूरी निद्रा में भी उनके श्वासों से मंत्र जाप चल रहा था। श्री धर्मदास महाराज की। ऐसे संतों के मैंने दर्शन भी किए और सेवा भी की। गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, एक छबिलदास जी बाबा जी थे, धर्मदास जी महाराज, मैंने ठाकुरदास जी महाराज, बड़े जप करने वाले। तो जप में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसको एक मुद्दे तक जप करते रहना चाहिए। और जप के बाद आता है ध्यान। क्या आता है? ध्यान। ध्यान को आज की भाषा में बोलते हैं मेडिटेशन। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा मेडिटेशन करोगे ना तो मेडिसिन कम खाना पड़ेगा। मेडिटेशन अच्छा करोगे तो उसका कारण क्या है? ध्यान। लेकिन ध्यान अकेला नहीं लगेगा, सेवा पूजा में ध्यान होना चाहिए, पाठ में ध्यान होना चाहिए, जाप में ध्यान होना चाहिए, तब जाके ध्यान लगता है। ध्यान का अर्थ होता है थोड़ी देर बैठ करके, अकेले बैठ करके आप अपने इष्ट देव के साथ जुड़ जाओ, एकाकार हो जाओ, एक हो जाओ। वो जो घड़ी है, वो जो क्षण है, वो क्षण ऐसा हो कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को विस्मरण कर जाओ, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती। तो वो जो ध्यान की अवस्था, जब इतनी प्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, ये चारों अंतःकरण जब एकदम पवित्र हो जाते हैं, तब ध्यान लगता है। तो वो परम के साथ, वो परमात्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं उनके साथ में, तो वो जो पहली बात की थी ना, अखंड सुख, प्राण जी ने कहा ना कि आपका सौभाग्य है कि चारों को यहाँ में भोग, तुम यहीं बैठे बैठे परम धाम का सुख ले सकते हो। वो कैसे? जब ध्यान में वो तरंगे आना शुरू हो जाए तब। तो इसीलिए उसका सबसे पहला रास्ता है जहां से होकर के हम परमात्मा से मिलते हैं, वो रास्ता है सत्संग का, वो रास्ता है। अब सत्संग में मन ही नहीं लगता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। सत्संग में कोई बुलाता है तो ऐसा लगता है काला पानी में बुला रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। आपको अगर सत्संग की रेसिपी अगर घरों में जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई ब्रिटिश सरकार हमको दंड देने वाली है क्या, जेल में डालने वाली है क्या, है ना। तो सत्संग सबसे पहला रास्ता है। जिस समाज में, जिस संगठन में, जिस आध्यात्मिक व्यवस्था में सत्संग को महत्व नहीं दिया जाता है, वो आध्यात्मिक संगठन कितना भी बढ़िया हो, वो कभी आगे प्रगति नहीं कर सकते। वो आगे प्रगति तब कर सकते जब सत्संग मजबूत होता है। क्यों? सत्संग के द्वारा समझ पैदा होती है। समझे बिना शुद्ध पारक होना। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा। प्राण जी ने एक एक बातें समझ की कही है। तो समझ आएगी कहां से? बाजार में थोड़ी मिलेगी समझ, किताबों में थोड़ी मिलेगी समझ मिलेगी सत्संग से। किसी महापुरुषों के चरणों में बैठो, अत्यंत विनम्र होकर के उनके चरणों में बैठ करके बड़ी विनम्रता से उपदेशों को सुनो, उस हिसाब से काम करो, तो जीवन में समझ आएगी। सत्संग से समझ, और समझ होने के बाद में तब वाणी में या परमात्मा के प्रेम रूपी दिव्य सरोवर में तब क्या होगा? तो रात की पौड़ावनी जो कहते हैं वो कह करके प्रवचन पूरा करो। रात की पौड़ावनी में हम बोलते हैं ना,
सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल इसक सुराहे प्रेम का प्याला, इसक सुराहे प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रही, बालो अंतर आत्म छकी रही, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बस ये तरीका है। जब आगे बढ़ते हैं, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, जब प्रेम का प्याला पी गए तो फिर क्या बनेगा? अंतरा आत्मा छकी रहिए का मतलब पूर्ण तृप्त हो। वहां तो प्राणनाथ जी कहते हैं, रे मन त्रिखा ना बुझ, तेरी त्रिखा मने तू कभी तृप्त हो नहीं सकता है अगर संसार की तरफ लगे रहेगा। अगर तू भक्ति में लगेगा, तो जाप में लगेगा, पूजा में लगेगा, महात्माओं की संगति में लगेगा, तो भीतर से सत्संग के द्वारा आपके भीतर प्रेम का समंदर उमड़ने लगेगा। फिर क्या होगा? अंतर आत्म छकी, अंतर एक अलौकिक तृप्ति आएगी, जिसे नारद भक्ति सूत्र में कहा, यल्लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति, सिद्धो भवति, अमृतो भवति। जिसे पाने के बाद, नारद जी का एक बहुत सुंदर एक छोटी सी पुस्तिका है नारद भक्ति सूत्र, उसका ये 6वां की 7वां सूत्र है, यल्लब्ध्वा, जिसे पाने के बाद पुमान तृप्तो भवति, मनुष्य पूर्ण तृप्त हो जाता है, सिद्धो भवति, वह परम सिद्ध हो जाता है, आनंदो भवति, वह आनंद में मस्त रहता है। और श्री जी कहते हैं, अंतरा आत्म छकी रही है। छकी रही है मतलब पूर्ण तृप्ति आ जाती है। बस आज के सत्संग में, क्योंकि आप लोग कभी कभी, अब गियर चेंज हो गया, कृष्ण कन्हैया लाल की, तो बहुत अच्छी बात है कि बस राज जी महाराज कृपा करें। यूके में सब कुछ ठीक है आप लोगों के साथ, लेकिन ये सत्संग बहुत अच्छी तरह बढ़े, सत्संग में ज़्यादा लोग शिरकत करें, सत्संग में भाव जगे। राजी महाराज जी, क्योंकि यहाँ आए हो, मेहनत करोगे, पैसा भी कमाओगे, सेट भी हो जाओगे, सब कुछ, लेकिन हमारा सत्संग नहीं छूटना चाहिए, हमारी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, हमारा भाव नहीं छूटना चाहिए। हमेशा हम परमात्मा से प्रार्थना करें, हमेशा ध्यान दें। जब हम संसार का काम करते हैं तो राज्य की कृपा को अपने मस्तक पर लेकर के, ऐसा कहा जाता है, संस्कृत में एक सूक्ति है, जब आप पैसा कमाओ ना तो क्या मन में रखो, तो क्या अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम सचिंतय, नीति में एक श्लोक है, क्या बोलते हैं? अजरा मरवत प्राज्ञ, प्राज्ञ माने बुद्धिमान जन। आपको अगर विद्या यानी पढ़ना हो और धन कमाना हो, तो मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी सोऊंगा ना, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसा विचार करें। नहीं तो हर रोज आप विचार करो કેટલા દિવસ જીવવાનું છે, તો શું કામ કરશો તમે? સવારે જ પગ તમારા ઢીલા હોય, આપણે એક દિવસ મરવાનો જ છે નહીં, આપણે હવે આવો વિચાર કરે માણસ તો શું કામ કરે? अभी कैलाश को देखो, मैंने आज पूछा था कितने बजे गए थे, 3 बजे तो उसने रेल चलाना शुरू कर दिया, आज 3 वागे गया था ना, बोलो
3 बजे आंख खुलती है क्या? अगर इसके भरोसे में बढ़िया से सोने को मिले ना तो 9 बजे भी उसके पास जाके वो घंटी बजानी पड़ेगी तब जागे। लेकिन फिर भी 3 बजे क्यों उठता है? क्योंकि उसको पता है कि ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो घर का भाड़ा भी नहीं भरा जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की, है ना। तो धन कमाने वाले को और विद्या पढ़ने वाले को मन में क्या सोचना चाहिए? हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, अजर और अमर है। किंतु उसी नीचे लाइन में लिखा है गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरण। जब धर्म का आचरण करो तो आप ऐसा समझो कि न जाने कब जाना पड़ेगा, तो इसलिए गलत काम नहीं करेंगे। नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। नारायण नाम के बहुत बड़े कवि हुए, वो कहते हैं कि मौत को भी याद करो और परमात्मा को भी याद करो। तो जीवन में लोग क्या होता है कि लोग यही समझते हैं कि नहीं नहीं हम तो हमेशा रहेंगे, हम तो हमेशा जिएंगे, हम ये सब चले जाएंगे लेकिन हम रहेंगे, ये जाएंगे लेकिन हम तो रहेंगे। अपने पैर कवर में लटक चुके हैं लेकिन फिर भी क्या, ये हिंदी की कहावत है, पैर कवर में लटक चुके हैं मतलब फिर भी सोचते क्या है, ये सब जाएंगे लेकिन मैं तो रहूंगा। प्राणनाथ जी ने किरंतन में बहुत अच्छी बात कही, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया में विस्मय, देख देख आवत मोय हासा। मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक तो भी सिर सर। एक क्षण का भी नहीं भरोसो छिन्न को, बरस मास और दिन ये तो दम पर बांधिया, फिर भी भूले जात भजन। इसलिए हमारी तकलीफ क्या है, जो जाते हैं वो यही लोग जाएंगे, हम तो जाने वाले हम हजार हमारे। इसलिए कहा धर्म जब करना हो तो कैसे करें कि मृत्यु अभी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए जब धर्म करने बैठे, जब पूजा करने बैठे, मौत को याद नहीं करना है, लेकिन मौत का भी जो मालिक है महाकाल, उसका भी जो मालिक परमात्मा धनी विराजमान है, वो मेरे सिर के ऊपर विराजमान है। इसलिए मैं उनकी सेवा करूं। परमात्मा को जितना नजदीक याद करोगे ना, इतना प्रेम बढ़ेगा। हाँ, परमात्मा को जैसे गर्मी पड़ी है, परमात्मा को कह सकते हो प्रभु आराम करना है क्या? अरस तुम्हारा मेरा दिल है। कितनी अच्छी बात है। क्या कहा? अरस तुम्हारा, यहाँ कभी गर्मी नहीं लगती, आओ यहाँ। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच के यही तुम्हारा, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बादन, पलन बालू निरखूं नेत्र मेरे जीवन के। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो इश्क। ये जो शब्द है ना, ये पकड़ के रखना। कैसे? मोहन थाल बनाया, खमण बनायु, फलाणु आप करियो, समोसा लाया, बद्दा लाया, पण एमा इश्क ना होय तो कृष्ण कन्हैया लाल की એટલે इश्क જોઈએ। हैं? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगों सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ श्री महामती जुगल स्वरूप कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजी महाराज की अनंत कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारी परम दिव्य परंपराओं का आशीर्वाद और परमहंस महाराज श्री का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामना सद्भावना के साथ इस बार अमेरिका से भद्रावतीपुरी धाम की ओर लौटते हुए काफ़ी समय हो गया था, और मैंने क्या देखा जानते हो, ये विदेशों में एक बहुत खतरनाक चीज़ है। जानते हो क्या चीज़ है? एक बहुत खतरनाक चीज़ है। हम लोग खुद ना आए ना तो तुम कभी बुलाने वाले नहीं हो। कृष्ण कन्हैया लाल की
एक चाहे मेरी अकेले की बात नहीं, बड़े महाराज जी हो, कोई भी हो, पड़ेगी, तो आदत हम पड़ेगी लोग ना महाराज। हम लोग क्या सोचते हैं कि तुम भूल न जाओ, हम जाके घंटी बजाते रहें थोड़ा आदत थोड़ा। पड़ जाएगी, हाँ, उसका जरूरत ना हो। ना। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि इस बार आते हुए मैंने कहा 7-8 दिन तक आप लोगों के साथ रहें, प्रेम भाव के साथ रहें। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गांठ बांध के रखो। आप इसको गलत अर्थ मत लगाना। मेरे जैसे साधु संतों को पैसों की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखो। एक बार क्या हुआ, एक बार विदेश में रहने वाले बहुत अच्छे परिवार, धर्मेश भाई सांभड़ा जी वस्तु से, विदेश में रहने वाले बहुत अच्छे परिवार, जिनका घर रूम सब बहुत अच्छा। मैं कभी मेहमान हुआ तो मुझे रात को ऐसे रूम दिया कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। फिर संजोग बस वो पहुंचे बड़ौदा, हमने तो स्वागत सत्कार किया, आइए बैठे, भोजन प्रसाद सब बढ़िया, हम बड़ौदा करते ही है। फिर हम चलते चलते उन्होंने कहा गुरु जी आ वर्षे आओ ना तो हमारे ત્યાં रहजो हम। फिर मैंने कहा तुम इधर आओ। मैं थोड़ा और साधु से हटकर साधु, मैं वो पीछे बात इधर मैं सीधा बोलता हूँ। मैं उनको उठा के लेके आया और मैंने जो हमारे गेस्ट के लिए जो रूम बने हैं ना, वो रूम में ले जाके दिखाया। मैंने कहा हमारे यहाँ आप जैसे गेस्ट जब आते हैं ना, हम उनको ये रूम देते हैं। और मैंने कहा तुमने मुझे जो सोने के लिए रूम दिया था, जाकर के अब देखना। कृष्ण कन्हैया लाल की, है ना। तो मेरा कहने का क्या मतलब, विनम्रता से कह रहा हूँ, आप लोग हमेशा या कोई भी संत महापुरुष आते हो, आप विचार करो कृष्णमणि महाराज जी कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठे, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसके आगे पीछे करोड़ों करोड़ों रुपया देने के लिए आगे पीछे घूमते हो। वो महाराज जब आपके घर में आए तो आप क्या, आपके वो 100, 200, 500 पाउंड के वो भूखे होंगे। सूर्य नारायण जी महाराज आप पार नहीं पा सकोगे। ये माया उनके सोना उनके कबाड़ में देखोगे तो 2-5 किलो सोना तो उनके कबाड़ में होता है। सही कह रहा हूँ, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कोई भी संत महात्मा आ जाए तो हमेशा मन में विचार करना कि हमारा कितना सौभाग्य है कि ये लोग अपना खर्चा लगा करके हमारे घर के दरवाजे तक आते हैं। इसलिए जब भी आए प्रेम से उनके देना लेना कुछ नहीं, लेकिन उनका समय सदुपयोग करो। कोई भी महापुरुष आए, वो जितने दिन रहेंगे, थोड़ा बहुत नुकसान अपने जीवन का थोड़ा बहुत नुकसान होता, वो नुकसान सहन करके उन महापुरुषों की सेवा करो और एक एक पल उनके प्रवचन, उनके उपदेशों का फायदा लो। तो इससे क्या होगा कि जीवन में बहुत बड़ा अर्थ लाभ होगा, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। कोई भी महापुरुष आए, हाथ जोड़ करके हमारे जीवन का उद्धार करिए। हमें कुछ ऐसा बताइए कि राज्य से प्रेम हो जाए, हम जीवन में आनंद आ जाए। तो इस ढंग से काम करना चाहिए। आप लोगों के ऊपर, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि भारत में जिनसे मिलने के लिए घंटों घंटों तक लाइनें लगानी पड़ती हैं या समय देखना पड़ता है, वो महापुरुष और संत आपके घरों में आते हों तो उसका लाभ, उनके उपदेश और उनका आशीर्वाद हमेशा लेना बहुत अच्छी बात है। पुनः एक बार, ये लोग तो अब धर्मेश भाई और राजश्री बहन, ये तो परम पूज्य जगत गुरु आचार्य कृष्णमणि महाराज के राइट हैंड कहो तो भी चलेगा, है ना। वो पीछे वाला जो महाराज श्री की झोंपड़ी है, अभी तो राजश्री बहन और दोनों का ऑफिस उधर है ना। लेकिन जब आचार्य महाराज श्री आते हैं तो उनकी वो नवतनपुरी धाम का ऑफिस बन जाता है ना। तो ये तो सौभाग्यशाली है, क्योंकि धर्मेश भाई के साथ तो राजश्री बहन के साथ संबंध होने के बाद में परिचय हुआ। लेकिन ये तो हम जब इनके घरों में जाते थे, नवतनपुरी धाम से महाराज श्री के साथ आते थे, छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल, अभी हाई स्कूल जाती होंगी या कॉलेज जाती होंगी, तब से हमने देखा है। और इनके पिताजी तो
बहुत कृष्ण के विरोधियों के साथ इतने कट्टर और लड़ाकू हैं आज भी, और नौतनपुरी धाम के प्रति ऐसी अपूर्व निष्ठा कि ऐसी निष्ठा सबके प्रति होती नहीं है। तो ऐसे आप सब लोग परमात्मा के असीम कृपा के पात्र हैं। राजी महाराज आप सबके ऊपर खूब कृपा बरसाएं। जब भी गुजरात आओ, श्री भद्रावतीपुरी धाम एक अलौकिक परमहंस पीठ, उसका दर्शन करने जरूर आए। इन्हीं भावनाओं के साथ सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसती रहे। खूब खूब भावपूर्वक प्रणाम। कल मैं यात्रा कर रहा हूँ और फिर पुनः आते रहेंगे। मैं तो इस रास्ते से कई बार यात्रा करता हूँ, फिर आते रहेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजू महारानी की, छत्रसाल महाराज की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, श्री भद्रावतीपुरी धाम की, श्री परमहंस महाराज की, सर्व सुंदर साध की, बोल बोल पंजे वाले की प्रणाम। पिंच 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 पिंच।